Dear students, today's lecture is on normal forms for context-free grammars. We can normalize the context-free grammars, and these normalized context-free grammars are helpful in parsing in case of compilers. There are two types of normal forms. These are the first one is Chomsky normal form, that is called CNF. The second one is called Greebeck normal form, that is GNF. First, Chomsky normal form. In Chomsky normal form, each production is of the form A drives BC or A drives small. A drives capital BC or A drives small. It means in every production rule in Chomsky normal form, a variable drives either two variables or a variable drives a terminal. Here B and C is two variables and A is a terminal. Examples of Chomsky normal form and not Chomsky normal form. The first production rule is as per Chomsky normal form, a variable drives two variables. Second one, a variable drives a terminal. Third one, a variable drives two variables. Fourth one, a variable drives terminal. So this grammar is in Chomsky normal form. Here, S drives AS, a variable drives two variables. It is okay. S drives double AS, a variable drives three variables. So this is in conflict with the Chomsky normal form rule. So with this rule, this grammar is not in Chomsky normal form. Again, A drives SA, this rule is okay, but this rule is in contradiction. A drives AA because a single terminal is allowed, but a double terminal is not allowed. So again, this is in contradiction of Chomsky normal form. So with these two rules, the grammar is not in Chomsky normal form. Now, a definition of Chomsky normal form. A context-free grammar without null. So if there are null productions, first you have to remove the null productions. Without null is in Chomsky normal form if all productions are of the form A drives BC or A drives small a, where A, BC are non-terminals and A is a. So अगर सारी की सारी प्रोडक्शन या तो A ड्राइव्स BC टाइप की हैं या A ड्राइव्स स्मॉल a टाइप की हैं. BC मीन्स या तो एक वेरिएबल से दो वेरिएबल ड्राइव हो रहे हैं या एक वेरिएबल से एक टर्मिनल ड्राइव हो रहा है. तो जो ग्रामर ऑब्टेन होगी उसको हम कहेंगे कि वो Chomsky नॉर्मल फॉर्म के अंदर है. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू कन्वर्ट context free grammar to Chomsky normal form? So there are 5 steps by which we can convert the context-free grammar to Chomsky normal form. So the first step is remove null productions, that is rules of the form A drives epsilon if n. If there are some rules that is A drives epsilon, then you have to remove these types of rules. Second one, remove unit productions, that is rules of the form A drive B if any. If these types of rules are there, then you have to remove it. If these are not there, then it is okay. The third one is you have to remove useless symbols or associated productions if any. So useless symbols और उसके correspondingly जो भी useless production होगी उन सबको भी अगर उनको भी आपने डिलीट करना है अगर वो कोई एग्जिस्ट करती है तो.
So these three rules are, these three steps are optional. If these are not present, so you have to start from the fourth one onwards. Next, fourth, remove excessive terminals from the productions. So अगर excess में एक से ज़्यादा terminals है right hand side में, तो सबसे पहले आपने उनको remove करना है. Then fifth one, remove production with more than two terminal, two non-terminals. फिर आपने वो production remove करनी है जिनके right hand side में दो से ज़्यादा variables हैं या दो से ज़्यादा non-terminals हैं. The first three steps are optional and may be skipped if the grammar does not contain those types of productions or variables. So first three steps are optional. You can start from the fourth one if the first three discrepancies or these three problems are not in the CFG. Otherwise, you have to start from first, second, or third, as the case may be. Now, first example, conversion to Chomsky normal form. So suppose we have this grammar, S drives A, B, small A drives double A, B, B drives capital A, C. So this grammar is not in Chomsky normal form because here we have two variables and a terminal. Here three terminals are there. Here one variable and one terminal is there. So we will convert it into Chomsky normal form. So since there is no null production, no unit production, and no useless symbols, so we will start from the step 4. So this is the original grammar. First of all, we introduce new variables for the terminals. So one variable for A, one variable for B, one variable for C, named T subscript A, T subscript B, T subscript C, and after introducing these three variables and replacing these terminals with these variables, our three production becomes like this. And these three are also added into the grammar, that is TA drives A, TB drives B, TC drives. ठीक है जी. Now here we have three variables, here we have three variables, here we have two variables. So this one is okay, this one is okay, this one is okay, this one is okay, but these two are problematic, are not in Chomsky normal. We have to replace these two production with the new productions. So first of all, introduce a new variable v1 to break the first production. So पहली production को break करने के लिए हम एक नया variable introduce करेंगे v1. So see how it can be introduced. S drives, ये पहला variable आपने ऐसे का ऐसे ही लिखना है, v1 and v1 drives bta. So if I substitute the value of here v1, it becomes abta. So see how this production is broken down into two productions by introducing a new variable v1. Next, now for the second production, introduce a new variable v2. Introduce a new variable v2, that is A drives TAV2, A drives TAV2, and V2 drives TATB, TATB. So see how this production is broken down into two productions. So now see all the productions are in
proper format. Every variable is either drives two variables or simple terminal. Either two variables or single terminal. So this is my initial grammar, and this is a grammar in Chomsky normal form. Every variable either drives two variables or a single term. ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं. Convert the following context-free grammar to equivalent Chomsky normal form. इस ग्रामर को हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. कोई नल प्रोडक्शन नहीं है, बट यूनिट प्रोडक्शन है. ई ड्राइव्स टी एंड टी ड्राइव्स एफ. सो पहले यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है आपने. ठीक है जी. सो हमने इसमें से रिमूव कर दी. टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, टी स्टार एफ, और फिर एफ की वैल्यू पहले एफ की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो टी स्टार एफ विद इन पैरेंथेसिस ई और ए आ जाएगा. फिर टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ई प्लस टी स्टार एफ विद इन पैरेंथेसिस ई ए आ जाएगा. सो अगर आप इनको रिमूव करोगे तो आपके पास ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल बन जाएंगे आफ्टर रिमूविंग द यूनिट प्रोडक्शन. ये आपने स्टेप लगाने हैं जो हमने यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के लिए लगाए थे. तो ये आपके पास आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन ये ग्रामर बन जाएगा. अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें से वो रूल को चेंज करना है जिनमें या तो राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल नहीं है. ठीक है जी. ठीक है जी. या एक टर्मिनल, एक सिंगल टर्मिनल है, एक से ज़्यादा टर्मिनल है. चलिए देखते हैं. सो नाउ अब जितने टर्मिनल हैं उन सब के लिए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है. प्लस के लिए करना है, स्टार के लिए करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए करना है, राइट पैरेंथेसिस के लिए करना है. ठीक है जी. ए के लिए नहीं करना, क्योंकि ए के लिए इसलिए नहीं करना कि ए एक सिंगल है. सिंगल जब जहाँ पे उसके लिए नहीं करना, एक से ज़्यादा है तो वहाँ करना है. सो लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, स्टार और प्लस के लिए नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लें. टी प्लस ड्राइव प्लस, टी स्टार ड्राइव स्टार, टी लेफ्ट पैरेंथेसिस ड्राइव लेफ्ट पैरेंथेसिस, टी राइट पैरेंथेसिस ड्राइव राइट पैरेंथेसिस. तो ये मेरी ओरिजिनल ग्रामर है. मॉडिफाइड ग्रामर मेरी ये हो. अब आपने क्या करना है, यहाँ प्लस है वहाँ टी प्लस कर दीजिए, स्टार है वहाँ टी स्टार कर दीजिए, जहाँ लेफ्ट पैरेंथेसिस है टी लेफ्ट पैरेंथेसिस कर दीजिए, राइट पैरेंथेसिस है टी राइट पैरेंथेसिस कर दीजिए. इसी तरीके से दूसरे में टी स्टार एफ, टी लेफ्ट पैरेंथेसिस ई, टी राइट पैरेंथेसिस ए, देन टी लेफ्ट पैरेंथेसिस ई, टी राइट पैरेंथेसिस ए. इस तरीके से आपने इनको कन्वर्ट कर दिया. तो हमारा पहला स्टेप हो गया. हमने जितने टर्मिनल थे उन सबको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया, और कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी ये प्रोडक्शन भी इसमें ऐड हो जाएगी. ठीक होगी जी बात. लेटर ऑन हम कर लेंगे. टी प्लस टी स्टार टी लेफ्ट में टी राइट. तो अब जिनके राइट हैंड साइड में ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी लेंथ 2 से ज़्यादा है, तो उनको हमने रिप्लेस कर. अब इसमें भी 2 से ज़्यादा है, 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 और इसमें भी 2 से ज़्यादा है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले ई ड्राइव्स ई K1 एंड K1 ड्राइव्स टी प्लस टी. सो ई और इस दो के लिए मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया कि यहाँ पे ये ठीक है. पहले इसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया K2. इसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया K3. तो ये देखिए ये ऐसे ही आएगा. ई ड्राइव्स टी K2, K2 ड्राइव्स टी स्टार एफ, ई ड्राइव्स टी लेफ्ट पैरेंथेसिस K3, K3 ड्राइव्स ई टी राइट पैरेंथेसिस. तो ये पहले तीनों इसके साथ चेंज. अब टी स्टार एफ के लिए मैंने K4 कर दिया. ठीक होगी जी बात. और ई टी राइट पैरेंथेसिस के लिए मैंने K5 कर दिया. चेक कर लीजिए.
टी ड्राइव्स टी के फोर ड्राइव टी स्टार है, ठीक होगी जी बात। टी लेफ्ट फ्रीक्वेंसी के फाइव ड्राइव्स ई टी राइट फ्रीक्वेंसी, चेक कर लीजिए, ये हमने कर दिया। अब इसके लिए हमने के 6 कर दिया, चलो हर एक के लिए नया नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट इज एफ ड्राइव्स टी लेफ्ट फ्रीक्वेंसी के सिक्स ड्राइव्स ई टी राइट फ्रीक्वेंसी, ठीक होगी जी बात। चेक कर लीजिए, सबके राइट हैंड साइड में दो दो वेरिएबल आ गए, इनको सबको हमने ब्रेक कर दिया है, ए वाली ऐसी रह जाएंगी। तो फाइनल हमारे पास ग्रामर क्या बनी, ई ड्राइव्स ए, वो ये वाली हमने लिख ली, बाकी सारी की सारी वहाँ से हमने पिक कर ली। टी ड्राइव्स ए प्लस सारी टी की पिक कर ली, एफ ड्राइव्स ए, ये सारी हमने एफ की पिक कर ली, टी प्लस ड्राइव प्लस, टी स्टार, टी लेफ्ट फ्रीक्वेंसी टी राइट। तो ग्रामर हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर पहुंच गई। सो इन जनरल हमने क्या करना है, फ्रॉम एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर विच डज नॉट प्रोड्यूस नल एंड नॉट इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वी कैन ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट ग्रामर इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। जनरली ये काम कर सकते हैं, जिसके अंदर नल प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नल लेवल वेरिएबल्स इफ एनी, यूनिट प्रोडक्शंस इफ एनी, यूजर्स प्रोडक्शंस और वेरिएबल्स इफ एनी, ये 3 स्टेप हो गए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एवरी सिंबल ए, जितने भी कोई भी टर्मिनल है उसके लिए आपने एक नया वेरिएबल टी ए इंट्रोड्यूस करना है, टी ए ड्राइव्स ए। इन प्रोडक्शन विद लेंथ एट लीस्ट 2, ऐसी प्रोडक्शन जिनकी लेंथ कम से कम 2 है, रिप्लेस ए विद टी ए। जिनकी लेंथ 2 है कम से कम, उनके लिए आपने ए को किसके साथ रिप्लेस कर दीजिए, टी ए के साथ रिप्लेस कर दीजिए। प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए ड्राइव स्मॉल ए डू नॉट नीड टू चेंज, जो इस तरीके की प्रोडक्शन है ए ड्राइव स्मॉल है, यानी कि जिनके राइट हैंड साइड में एक सिंगल टर्मिनल, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल ऐसी प्रोडक्शन के अंदर आ रहे हैं जिनके राइट हैंड साइड में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल या टर्मिनल है, तो उनके लिए ये आपने करना है, ठीक होगी जी बात। नाउ रिप्लेस एनी प्रोडक्शन ए ड्राइव C1 C2 CN, कैसे विद ए ड्राइव C1 पहला सेम रखना है, बाकी सब के लिए एक नया वेरिएबल V1, फिर V1 के लिए क्या करना है, C2 सेम रखना है, एक नया वेरिएबल V2, फिर V2, फिर C3 सेम रखना है, नया वेरिएबल V3 एंड सो ऑन। तक कब तक चलना है, Vn-2, Cn-1 सेम रखना है, Cn लास्ट। तो इस तरीके से आपने इसको तोड़ते जाना, न्यू इंटरमीडिएट वेरिएबल V1 V2 अप टू Vn-2 तक ये नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, अगर इधर n वेरिएबल्स हैं तो, ठीक होगी जी बात। तो ये इस तरीके से आपने राइट हैंड साइड में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, उनको तोड़ने का ये हमारे पास स्टेप्स हैं। होमवर्क देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास ग्रामर है, अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर ना तो कोई नल प्रोडक्शंस नहीं है, बट यूनिट प्रोडक्शंस हैं। तो इन यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करिए, फिर जो ग्रामर आएगी उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस ग्रामर के अंदर भी यूनिट प्रोडक्शंस हैं, ठीक होगी जी बात। तो इस यूनिट प्रोडक्शंस को हटाएं पहले, फिर ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस ग्रामर के अंदर कोई ना तो नल प्रोडक्शन है, ना यूनिट प्रोडक्शन है, ना ही यूजलेस सिंबल्स हैं, तो इस ग्रामर को आप सीधा चौथे स्टेप से शुरू कर सकते हैं। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और सॉल्व करके मेरे को भेजिए। थैंक यू आज के लिए।